Welcome to the Wave Andaman podcast, sir. It's a delight to have you and to have a conversation with you. And I hope you're having a great day, middle of the day. Rashmi, thank you for getting me over. I gave the previous interview quite some time back. So I agreed, and a pleasure to be here with you. But to start with, let me convey my greetings. अपना नमस्कार पूरे आइलैंडर्स को। ये आइलैंडर्स मेरी लार्जर फैमिली, बड़ी फैमिली का हिस्सा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से मैं उन सब को एड्रेस कर पाऊंगा, अपने कुछ विचार उनके सामने रख पाऊंगा। सो हियर वी गो, प्लीज स्टार्ट। I believe I am more delighted from you after a long time. या तो शुरुआत करते हैं आपके जैसे आप यहाँ पर आइए जुड़े हुए हैं. While you were selecting governor, you must have had your experiences of island. जब बाहर से लोग आते हैं उनको पता नहीं होता है कि what is there in the bucket. Okay, okay, I got it. Let me start. I retired as Southern Army Commander in on 31st January 2013. And I had enrolled for a PhD program. That's what I wanted to do, a PhD on leadership. I had gone to Himachal for a long trip. And when I got back, I got a call from the Home Minister. And I thought it must be some prank. Is it, Jal Sahab? We have no details of you, neither your address nor your telephone number. I've got it with great difficulty. So I said, sir, I've done nothing wrong. I'm law abiding. He said, no, no, no. We are thinking of sending you to Andaman. So he called me to meet him. I asked him, I said, sir, can I think about it and get back? He says there is a long line of people who want to go there and you want to think about it. So I said, okay, fine. I signed some papers and that was 20th June. And then it took 10, 15 days. On 8th July, I landed in the Andamans and took oath. On 7th July, Rashmi, in Delhi, I hosted a dinner for the previous Lieutenant Governor, General Bhupender. I knew him. He was senior to me in the army. He had served 6 years in the Andamans. And I recollect he gave me two pieces of advice. First, he said, this is a civil setup. It's not an army setup. So be careful. Don't write too much on the file. It says best is if you just initial, the bureaucrats will decide what is to be done. Second, he said, Andaman has a very large number of news channels and newspapers. Each one of them is critical. If you read them, you will start your day in a bad mood. So don't read those papers. And Rashmi, let me say it right here. I did both those things. Every file that came to me had detailed notes in my hand. And I read every paper, including those who were compulsively critical of me and were pursuing some vested interest. But in that reading, I could pick up few issues that were afflicting the common man. And sure enough, I would circle them, send it to my secretary, who would send it to chief secretary and ask for feedback. So that's how we started. On 8th, as I was boarding the flight from Delhi, my wife and younger son were with me. Who walked in? Mr. Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, but virtually the PM candidate of NDA. I had met him in Gujarat as part of my charter, and he recognized me. We exchanged greetings, and he wished me good luck. So, good start. I landed up at around 11, and at I think 2:30 or so,
I was sworn in as the 11th Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar. It was a moment of great pride. My wife and son were with me, and a few army officers had flown in on their own money to be present for the occasion. So, after lunch, while the family discovered the Rajnivas, I went down and called my secretary, and I laid out my charter on day one itself. And I told him, I want you to draw up a program of my visits across the islands in 1 month, 2 months, and I want to complete the tour of the islands in 3 months. So that's how we started. Just one more thing, if I could say, when I joined, of course, I was very proud of being appointed as the lieutenant governor, and that also because I had not wanted it. It came as a surprise to me. I suppose my work in the army got me here, but I had made one resolve. Rashmi, I am known in the army for very high integrity. बहुत ईमानदारी से काम किया है पूरी लाइफ, तो वो तो करना ही था। लेकिन दूसरी चीज मैंने एक निश्चय किया कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांगूंगा। जो Okay. भी टेन्योर है, जब गवर्नमेंट मेरे को कहेगी कि टाइम हो गया, तो मैं धन्यवाद करके चला जा। उससे क्या हुआ कि एक आजादी सी मिल गई। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, और इसलिए आपने देखा होगा, आप अंडमान की है, जानती होंगी, जितना काम किया बिना डर के किया, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं था। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ माय अराइवल इन अंडमान। Wonderful. I would like to know how was the reaction of your family? मतलब आप कमीशन रहते थे हमेशा, तो आई थिंक आपके लिए मूव इन करना इट वाज नॉट अ बिग डील, बट अ फैमिली या मूव इन, दैट्स अ रश्मि, हाँ, my, I had been staying away from my family because my son was studying in Delhi and my wife was based here. So when I retired, I thought this is a good time to come back to the family. And then I got news that I had been selected as a member of the Armed Forces Tribunal at Lucknow. It's a equivalent to a High Court judge. So I sought an appointment with the Defense Minister, Mr. Anthony. I went and told him, Sir, thank you for selecting me, but I will not be able to take this up. He was quite surprised. Again, he said, there's a long list of generals who want to go. I said, Sir, I've been staying away from the family. And I do not want to do a job where I will be just doing written orders, etc., etc. However, if you have a challenging job for me, I don't mind going anywhere, anytime. So I think that also stuck in his mind, and he must have uh, proposed my name. So the family was actually, to start with, it came not as a shock, but a pleasant surprise. There was no talk of it. It's only on 20th June that I got a call from Home Minister. So there was excitement. Not only the family, close friends, everybody felt good that one of their own was reaching the top places. And there was expectation, like always, that I will do my best in this job. Let me also say that my wife continued to stay with my son in Delhi. I have a house here, my mother's house. So I was again staying alone in Andaman. That had उसके दो मतलब थे। एक तो था कि अकेला था, और ऐसी पोजीशंस में कभी कभी आपको ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये थी, रश्मि, कि मेरे पास समय ही समय था।
आप पूछो उन दिनों के लोगों से, वो कहेंगे जनरल साहब तो बस लगे रहते थे सुबह से शाम। I एंड actually got to know that. आई थॉट कि 3 साल में मैंने 10 साल का काम कर दिया, वो मेरा मानना है, बट ये तो एंडमन के लोग जज करेंगे। बट दैट्स हाउ द कनेक्ट ऑफ द फैमिली वॉज, वो आते जाते रहे। बट एक चीज और बता दूं कि आई वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट एज फार एज यूजिंग फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फैमिली। ऑफकोर्स राजनिवास मेरा घर भी था तो रहते थे, लेकिन बाहर कहीं भी जाते थे, लाइक हैवलॉक, नील या बारा टाउन, कोई भी जाता था मेरी फैमिली से या विजिटर, वो अपना खुद का बिल क्लियर करते थे। सो Okay. ठीक है। तो सर आपने जैसे बोला, एक्साइटमेंट भी होता है, चैलेंजेस भी होती है किसी भी पोजीशन में, एंड स्पेशली आप जब कोई आइलैंड का कमांड आपके पास आता है, तो व्हाट वर योर चैलेंजेस एंड व्हाट एक्साइटेड यू और सरप्राइज्ड यू? सी रश्मि, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि एंडमन को जानना जरूरी है। एंडमन एक कॉम्प्लेक्स जगह है, लोग बहुत सीधे हैं, लेकिन हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ऊपर से लेके डिगलीपुर से लेके इंदिरा पॉइंट तक जितने आइलैंड में लोग रहते हैं अंडमान में, निकोबार में ट्रैवल किया। और हेलीकॉप्टर से, कार से, बोट से। एक आइलैंड था निकोबार में जहां हमने लैंड किया, वहां की एक ही जिप्सी थी, वो खराब थी। तो मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी आनंद प्रकाश को बोला कि आप पीछे बैठो, और मैंने इंस्पेक्टर साहब की मोटरसाइकिल ली और चल दिया। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को डर लग रहा था, पूछने लगे, सर आपने मोटरसाइकिल कब चलाई थी? मैंने कहा 40 साल पहले चलाई थी। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। शुरू में लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, दे वर स्लाइटली हेजिटेंट टू ओपन अप। बट जैसे जैसे मेरे से मिलते गए, एक हवा सी चल गई कि जनरल साहब हमारे आदमी हैं और हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं, कुछ भी कह सकते। पोर्ट ब्लेयर में जब भी होता था तो साइकिलिंग जरूर करता था, वो आपके सी फेस के ऊपर। आई यूज्ड टू साइकिल, वॉक, और जो मिलता था। पहले दिन जब गया तो पुलिस वालों ने घेर रखा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने डीजीपी साहब को बुलाया, मैंने कहा दो चीजें हैं मेरे बीच में और आम लोगों के बीच में, पुलिस नहीं आनी चाहिए। आप प्लीज सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, बट दूर रह के, ताकि लोगों को तकलीफ नहीं। दूसरा मैंने कहा, ये जो यहाँ का रवैया है कि जब एलजी साहब की गाड़ी चलती है तो ट्रैफिक 5 7 10 मिनट पहले बंद कर देते हैं। आई सेड, मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए हो सकता है बिजी जंक्शन पर आप ट्रैफिक रोक लें, बट 1 मिनट से ज्यादा नहीं। दूसरा, मेरे साथ खाली 2 गाड़ियां होंगी, आगे गाड़ी होगी जो रास्ता दिखाएगी, और पीछे एक बैकअप गाड़ी, बस 3 गाड़ी, चौथी गाड़ी नहीं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक मुझे याद है पहली बार जब मैं वॉक कर रहा था तो एक शख्स मिले मेरे को, मिस्टर अरोरा, शायद अब तो 100 साल के हो गए हैं। उनके हाथ में एक ट्रांजिस्टर होता था और वो उसको उसमें गाने सुन रहे होते थे। तो मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया और फिर लगातार उनसे मुलाकात होती रही, और उनका जो ग्रैंडसन है गिरीश अरोरा, वो एक अच्छा दोस्त बन गया। मेरे से काफी मुलाकात होती थी और अंडमान के बारे में काफी बातचीत होती थी। ऐसे ही बहुत लोग हैं, नाम गिनाऊंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि हम नहीं रहे। सब लोग मिलते थे, और आज भी रश्मि बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ संपर्क में हैं। और खास तौर से जो कॉमन सिटीजन है वो ट्विटर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो
मेरे से अपेक्षा रखते हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा, तो जितना हो सकता है वो करता हूं। सर दूसरा सर बोलिए। दूसरा पहलू दूसरा पहलू था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अकेले मैं कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल एहसास था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही रिजल्ट्स हासिल हो। तो मैंने देखा कि शुरू में रिस्पांस थोड़ा ढीला था। तो मैं चीफ सेक्रेटरी आनंद प्रकाश साहब, वो आजकल है नहीं, डेथ हो गई थी उनकी, अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरे सेक्रेटरी थे एस.एन. मिश्रा, वो अभी मिलते रहते हैं। तो मैं हमेशा उनसे पूछता था कि भाई मैं इतना क्लियर डायरेक्शन देता हूं आपको, फिर भी काम नहीं होता। तो एक दिन वो कहते हाँ सर करेंगे करेंगे। फिर एक दिन वो सब आईएएस ऑफिसर्स आए मेरे को और कहते हैं सर कल से देखिए आप कैसे काम करें। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा सर हमको पहले विश्वास नहीं था, हमने सोचा आप भी जैसे लोग आते रहे हैं वैसे ही रहो। अब हमें विश्वास हो गया है कि आप किसी मकसद से आए, आप अंडमान के तरक्की के लिए आए, और जो भी आप सोचते हो उसी चीज को आप कहते हो, और वही चीज हमसे करवाते। लेकिन हमारी आदत है, they said, we have been used to working in an environment where our bosses mean one thing, say another thing, and finally don't want us to do anything. So you'd be surprised, senior IS officers, some of them still in service, are in touch with me, and it feels nice to get to know. And I can tell you, जितना भी हमने अंडमान में हासिल किया, उसका श्रेय दो तीन चीजों को जाना चाहिए। पहला श्रेय जाना चाहिए अंडमान के सिटीजन्स को, निवासियों को, बिकॉज वो समझ गए। हालांकि हमेशा कुछ लोग तो रुकावट डालते रहते थे, बट लोग समझ गए कि जनरल साहब का अपना कोई निजी इसमें स्वार्थ नहीं है। आई डिडंट हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट, so I started getting support, even in controversial sort of decisions. Second was that uh, the the blessings of the Honorable Prime Minister. You know, in my full tenure of 3+ years, not once did the Prime Minister tell anything to me. और आपको मालूम है अंडमान का जो रिवाज है, मेरे अगेंस्ट डेली कंप्लेंट लोग करते थे, बट सिंस आई वाज वेरी क्लियर, क्लीन, आई डिडंट हैव टू बॉदर. एंड थर्ड वाज द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. आई ग्रांट फुल मार्क्स टू, और बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने देखा है उनको ब्लेम करते हैं, बट एक चीज सब लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अंडमान में तरक्की अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होगी. एंड आई थिंक द बेस्ट अप्रोच इज के उनको अपने साथ लेके अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाने के बाद आप देखिएगा कि तरक्की जरूर होगी. Well, I'm very much hopeful on that part से, मतलब मैं आपके लिए तो एक मैसेज है मेरे पास से कि मैंने आपके लेके जितनी बातें जानी है, लोगों ने आपकी साइकिल के इतने चर्चे किए हैं हमारे सामने कि जनरल साहब तो जब साइकिल में निकल पड़ते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि सच में है करके, एंड दे स्टिल फाइंड दैट वेरी अम्यूजिंग, एंड फाइंड दैट कि वो आपसे कितने जुड़े हुए हैं, एंड दीज आर लिटिल पीपल लाइक हम मरीना पार्क पे वॉक कर रहे थे, सर मिल गए, तो ऐसे सर से आज भी होते हैं। Yeah, I also once decided to have a cycling marathon, not marathon, it was a short cycling stint from the Rajnivas or somewhere there to Carbon School. So chief secretary, all secretaries, all police officers, सब लोग थे उसके अंदर.
एंड मैंने देखा कि आधे रास्ते में आधे तो नीचे उतर गए थे बिकॉज दे वर नॉट फिट. So I think I was able to set an example for fitness as well. साइकिलिंग के अलावा मैं जिम जाता था. वहाँ लोकल बॉयज एंड गर्ल्स वर देयर. So it was good to interact with them. शुरू में तो they would be very chary, but then they realized that I'm a normal man like them, and it was a good occasion to get feedback from. And so I had, Rashmi, many sources of feedback. खाली ऑफिशियल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता था. मैं मेरे पास मैसेज आते थे उनको कोलैबोरेट करता था, उनकी तसल्ली करता था और फिर सही डिसीजन लेता था आगे चलने के लिए. एंड इट वाज अ प्लेजर टू वर्क इन दी आइलैंड्स. एंड आई डेयर से कि जो भी हमने प्रोजेक्ट्स चलाए वो अबाउट 80% ऑफ देम आई कुड सी थ्रू फॉर कंप्लीशन. 80% को हमने पूरा कंप्लीट किया. 10-20% थे जो लॉन्ग टर्म थे. तो होपफुली जब आके देखूंगा तो पता चलेगा. मैं इतने 10 साल हो गए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आप आइए, तो देखता हूँ इस विंटर्स में अगले साल जब भी होगा एक ट्रिप जरूर. Absolutely, sir. I mean, we'll be more than happy to welcome you. And आप जब अभी बातें कर रहे थे तो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, स्पेशली बिकॉज अंडमान में डिफेंस सेक्टर में भी कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आ जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज तो अपना लगा ही रहता है. और उस चीज को लेकर मैंने देखा कि आप वक्त के एनएमसी प्रोजेक्ट आए थे, एनकॉल आपने एस्टैब्लिश किया एंड यू इनिशिएटेड ऑल दिस प्रोजेक्ट. And I should really say that, You know, I'll just give you example. One day, a group of students, I was cycling, they cornered me. They said, "Sir, आप गवर्नर साहब हैं यहाँ के, सब सीट भर गई हैं, इतने स्टूडेंट हैं, हम कहाँ जाए? मेनलैंड में हमारे पास पैसा नहीं, तो कहाँ एडमिशन ले? एक ही रास्ता है, वो जो क्या बोलते हैं आप ऑनलाइन आप कोई कोर्स कर सकते हैं." तो आई कॉल्ड माय एजुकेशन सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी उसी शाम को. And I said, can't we start another college? So we started NCOL. David Devdas Thaudhar, principal. Then we started a law college. Then we started a skill development college and things like that. So one day, a group of students, I used to hold a meeting open for all citizens on Tuesday. एंड मैं अकेला नहीं होता था, चीफ सेक्रेटरी और इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज बैठे होते थे ताकि वहीं सॉल्व कर सके. और मोस्टली जेन्युइन लोग आते थे जो बहुत परेशान हो गए थे, उनका काम नहीं हो रहा था और काफी हद तक हम लोग उनको रिलीफ दे सकते थे. तो एक दिन कुछ स्टूडेंट्स आए और वो कहते हैं कि सर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम दूर दूर से आते हैं, हमको अपना सर्टिफिकेट काउंटर साइन कराना पड़ता है, तो एक ऑफिसर डिटेल कर दीजिए जो उस टाइम पे वहां मौजूद होगा. हम इतनी दूर से आते हैं और पता चलता है वो ऑफिसर है ही नहीं. तो मैंने ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा आनंद ये खुद क्यों नहीं काउंटर साइन कर सकते? तो कहते हैं सर कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई आप क्यों सोच रहे हो कि गलत साइन करेंगे? आखिर में तो दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल पेपर, बट सबमिशन के लिए लेट देम काउंटर साइन. सो मेरे ख्याल से एक आध स्टेट और भी रहे होंगे जहां पर हमने पहली बार शुरू किया कि एवरीवन कुड वेरीफाई देयर ओन डॉक्यूमेंट्स, सच सिंपल थिंग्स. देन वन डे एक महिला आई ट्यूसडे को और मेरे से पूछती है कि सर राजनिवास देखना चाहते हैं. तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है? फिर मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा महीने में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ, ओपन अप राजनिवास. और आप
उसकी लिमिट लगा दीजिए, 100 लोग लोग अप्लाई करेंगे और 100 लोग उस दिन अंदर आएंगे। मेरा बेडरूम छोड़ के बाकी पूरा राजनिवास दिखा दीजिए, और उनको आप, मेरा सेक्रेटरी या फिर एडीसी ब्रीफ करेगा कि राजनिवास कैसे चलता है। एंड आई थिंक इट ब्रॉट द पीपल क्लोजर टू मी। वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है। आर्मी में भी मैं ऐसे ही रहता था, मुझे कभी गवर्नमेंट चीजों से लगाव नहीं था कि ये, एंड आई वाज क्लियर, वो मेरी पर्सनल थोड़ी है, वो तो खाली अपॉइंटमेंट में सहूलियत देने के लिए। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू वर्क। I realized that my priority had to be medical and education. Medical for today, education for tomorrow. And 18% of the budget I devoted to medical and education. You know, ये मेडिकल कॉलेज, इतनी मुश्किलात आई इसके अंदर, लोग, छोटे छोटे लोगों ने इतनी अड़चन डाली, मेरे अगेंस्ट तो हर हफ्ते कंप्लेंट था। बट आई वॉज क्लियर कि अगर मेडिकल कॉलेज ले आएंगे तो जितनी डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की हमारे पास शॉर्टेज है वो पूरी हो जाए। और आप देखिए कि पहले हमारे को ऑल इंडिया में 8-10 मेडिकल सीट मिलती थी, आज तकरीबन 80-85 एंडमन के बच्चे मेडिकल में जाते हैं। और उनको अब हम मेनलैंड में अपने डॉक्टर्स भेजेंगे। प्लान था कि एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, एक पोस्ट ग्रेजुएट खोलेंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ। हालांकि पुनिया श्रीवास्तव जो कमिश्नर थी मेरे साथ, फिर पीएमओ गई थी, वो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी है, तो कहीं मिली थी, मैंने उनको याद दिलाया कि पुनिया आप पता करो कि क्या हो रहा है उन चीजों का। सो आई सपोज अपने टाइम में होगा। we hope for something for specialization, especially medical field में जरूरत तो है, अभी है वो, that's a bridge that we still need to cover. But having said that, आज की डेट में मैं जितना बता सकती हूँ, post COVID especially, Andaman has changed. It is not the same anymore, and it's been like, no, pre-COVID and post-COVID में I understand कि कोविड से बहुतों का नुकसान हुआ है, बट अंडमान में फायदा हुआ है आई क्योंकि होप, रश्मि, आई होप अंडमान हैज चेंज फॉर दी बेटर, अच्छाई के एब्सोल्युटली, लिए चेंज। एब्सोल्युटली तो 100%। मुझे 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 खुशी है ये सुनकर कि अंडमान में प्रोग्रेस हो रहा है। और कई लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं हम अंडमान से हैं, तो बहुत खुशी होती है उनसे मिलके। अच्छा, एक चीज और बताओ, अंडमान में रश्मि एक और चीज थी कि लोग आपस में हर एक चीज में एक टकराव होता था, देयर इज टू बी कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने एक दिन सब लोगों को बुलाया और मैंने उनको बताया कि मेरी नजर में अंडमान में एक नहीं बल्कि 4 सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो केंद्र बिंदु विच कंट्रोल्स एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो मैंने कहा नॉर्मली एक होता है बट अंडमान में 4 है। सबसे पहला है कि ये एक स्ट्रैटेजिक जगह है अपने कंट्री के लिए, तो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। दूसरा है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को लाके बसाया था, लैंडलेस पीपल, उनकी मेहनत से आज अंडमान बना है। तो उनकी कई अपेक्षाएं हैं, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उनकी अपेक्षाओं और उनके डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी बात है कि अंडमान मेरे ख्याल से इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक टॉप हॉटस्पॉट है एनवायरनमेंट का, और इसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट, सबसे ज्यादा मरीन रिजॉर्ट्स अंडमान में है, 95 या 96 होते। और आखिर में यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं,
जो कई हजारों साल से यहाँ रह रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का एक कमिटमेंट है उनके लिए कि हम उनकी देखभाल करेंगे। और ये कभी ट्राइबल, उस पर लंबी स्टोरी है, बहुत काम किया, और उसमें काफी डाइवर्स व्यूज थे। तो किसी और दिन आप का जब वो टॉपिक होगा तो मैं आपको सुनाऊं। तो Absolutely. आई टोल्ड, आई कन्वे टू पीपल कि ये चारों सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते। दे हैव टू स्टे इन हार्मनी विद ईच अदर, तभी अंडमान का प्रोग्रेस। I think आप अभी जो जिस 4 बिंदु की बात कर रहे हो, यह सबसे मेजर पॉइंट और आज की डेट का हाइलाइटेड पॉइंट है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो सारी जगह में अब हाइलाइट Yeah, होते हैं। anyway, the Great Nicobar project is a development project to utilize Great Nicobar Island and its location for as a transshipment terminal. Hmm? मैं जब वहां था तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, एक स्टडी हुई थी, और मैंने वो स्टडी को पढ़ा, तो मुझे पूरा कन्विंस नहीं हुआ। तो आई फ्लू टू ग्रेट निकोबार, मैं गया, सब ऑफिशियल्स मेरे साथ, और वहां 2-3 दिन का पूरा दौरा किया मैंने। और मुझे समझ में आया कि इस प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो मैंने फाइल पे अपने हाथ से लिखा कि यहाँ पर कई चीजें हैं जिनके ऊपर और ज्यादा गहराई से स्टडी होनी चाहिए। एनवायरमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, शॉम्पेन्स रहते हैं, उनका रिजर्व फॉरेस्ट है वहां, और सबसे बड़ी चीज थी कि एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। आपको तो मालूम होगा, जब सुनामी आई थी तो ऊपर नॉर्थ में डिग्लीपुर एरिया में अंडमान 1.5 मीटर ऊंचा उठ गया था, और ग्रेट निकोबार एरिया में 1.5 मीटर नीचे चला गया। तो इट्स अ वेरी हैजर्ड प्रोन एरिया। तो मैंने अपनी नजर में कहा कि अभी ये प्रोजेक्ट कन्विंसिंग नहीं है, और इसमें और गहराई से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, फिर कोई सही डिसीजन लिया जा सके। अब मुझे पता है कि एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद हजारों करोड़ का, 70,000, 60-70 हजार करोड़, और 30 साल में चलेगा। और उसके खिलाफ काफी आवाजें उठी हैं, और थोड़ा इशू पॉलिटिसाइज भी हो गया है। मैं, मेरी नजर में मेरा फोकस अंडमान की तरफ है और देश की तरफ। तो मेरा मानना है, रश्मि, कि डेवलपमेंट तो अंडमान में हम रोक नहीं सकते। डेवलपमेंट तो होगा और होना चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन वो डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो सकता जैसे मेन लैंड पे। और आपने देखा इस अंधाधुंध जो हमने डेवलपमेंट किया है उत्तराखंड में, हिमाचल में, आपने देखा है उसका क्या हालत हुई है। तो बड़ा सोच समझ के इस कदम को आगे ले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ मत करें, लेकिन उतना ही करिए, वो ही करिए जो वहां का एनवायरनमेंट सहन कर सके, और वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो रह सके। तो वी मस्ट move forward, but with great care, and there should be no hurry to push the project against expert advice. मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। दूसरी चीज एक और आपको बताऊंगा, मैंने एक ऑल्टरनेट सजेस्ट किया था। मैंने कहा था कि आपके दोनों तरफ, आपके ईस्ट में सिंगापुर है, आपके वेस्ट में कोलंबो है, अपने खुद के पोर्ट्स हैं,
ईस्टर्न सी बोर्ड पे, तो उसके बीच में कितना ये पोर्ट सक्सेसफुल होगा, म- मैंने इस चीज को स्टडी नहीं किया है, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कराया होगा। मैंने एक प्रपोजल दिया था कि आपको अगर ट्रांसशिपमेंट जगह बनानी है तो रटलैंड के पास आप एक पोर्शन अंडमान सी का एयर मार्क कर दीजिए, जहां पर बड़े शिप्स आएंगे और छोटे शिप्स के अंदर वो ट्रांसफर करें, और वो छोटे शिप्स वो सामान लेके अपने अंडमान सी के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वहां लेके जाए। और एक दो प्रपोजल भी आए थे इसके, तो मैंने वो अप्रूव किए थे, लेकिन मैंने कहा था इसमें कोई भी पल्यूटिंग चीज को नहीं कर सकते, लाइक कोल डस्ट। यू कैनॉट डू ट्रांसशिपमेंट ऑफ कोल डस्ट, वो पूरी सी को गंदा कर। सो आई थिंक वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। आई श्योर द गवर्नमेंट इज हियरिंग द वॉइसेस, नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। So I'm sure the central government, Home Minister, and the people associated with Andaman and Niti Aayog, they are hearing the voices that are rising. And I think the attitude should be, rather than just bulldoze the project, I think the attitude should be to take expert advice along and move slowly, not with haste, so that whatever is done is good for Andaman Nicobar and for our country. So thank you so much for the insight, sir. And finally, I would like to have some message for the islanders. रश्मि, अभी आपके ब्रेक में I asked my wife that do you have any impressions or message for the island? She says island के लोग तो अपने ही हैं, हम उनके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आइलैंड वाला आके मिलता है हमसे। मेरी तरफ से रश्मि, मैं कहना चाहता हूं कि आइलैंडर्स को अपनी तरक्की, अपना प्रोग्रेस अपने हाथ में लेना चाहिए। पूरे टाइम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेंगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। तो मेरा मानना है कि दैट स्पिरिट ऑफ फ्री एंटरप्राइज जो होती है हर जगह, और आप देखिए अंडमान में है, आप जनरेशन देखिए, जो पहली जनरेशन थी उसकी दूसरी जनरेशन देखिए, अब थर्ड जनरेशन को देखिए, दे आर ऑल हाईली एजुकेटेड एंड गोइंग अप। सो रश्मि, माय मैसेज टू द आइलैंडर्स, आई कंसिडर माई सेल्फ एन आइलैंडर, a well-wisher of the islands and its people. And therefore, I only hope to see progress in Andaman. Progress not only among a few people, but progress पूरे अंडमान के लोगों के। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेंगे ही, बट तरक्की के लिए आइलैंडर्स को खुद अपने को आगे बढ़ाना है। एंड दैट स्पिरिट ऑफ फ्री एंटरप्राइज जो है वो और डेवलप करनी है। मेरी तरफ से अगर कोई भी असिस्टेंस किसी को चाहिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, और कोशिश करूंगा दैट आके आप लोगों को जल्दी ही एक बार फिर मिलूं। धन्यवाद। जय हिंद।